Yes, class. Very good morning. Welcome to KCI. We are back with a new lecture of English Reader Class 12th Flamingo. We have discussed Chapter 2 Lost Spring, the stories of stolen childhood. Already we have discussed its part 1, which is the rag pickers, and today we are going to discuss its part 2 or part 2, in which we will read about the bangle makers in the city of Firozabad. Those people who are making bangles since their generations, since many generations passed on, but they are not thinking of doing something else or anything else. They don't wanted to be their own master, and the whole stories, both of the stories we will look in this chapter, are based on being their own master. People's author wanted to be their own master. Author actually, Anish Jung wanted people to be their own master, but people who were making bangles, or in the first part we have seen people those who were picking rags, and they don't wanted to be their own master. Previous story, in the rag pickers we have studied a story of few children's, and namely Sahib. Actually, he was very happy collecting rags. They were not thinking about their own future. They were not thinking about they being their own master. And same in the second part of the story, we will discuss about Mukesh and his family, how they are doing. They are making bangles since many generations, and they wanted to continue on their future. But this boy Mukesh, he wanted to do something else. He wanted to be his own master. He wanted to be a car mechanic. Okay, so let's see. Welcome to KCI once again. What we are going to discuss: Lost Spring. Okay, Chapter 2 Flamingo. And it is written by Anish Jung. Okay. Stories of stolen childhood. First part, the rag pickers. Already we have discussed about that. Today we are going to discuss about second part, bangle makers. Okay. We have already discussed about its first part. Today we are going to discuss about the bangle makers. So let's see. Is it visible to you guys? Okay, clear. See what is written here. I want to drive a car. Okay, what? I wanted to drive a car. Mukesh, the main character of this story. What is his name? Mukesh. Clear? Okay. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. ठीक है. Mukesh, a character, a child in that area, a son or a grandson of a bangle maker. Mukesh insists that
On being of his own master, I wanted to be a motor mechanic, he announces. मुकेश कहता है कि मुझे मेरा खुद का मालिक बनना है, मैं कार मैकेनिक बनूंगा, मैं कार ठीक करने वाला बनूंगा, मुझे ये काम बैंगल मेकिंग का, चूड़ियां बनाने का काम मुझे नहीं करना है ना, मैं क्या करूंगा, मैं मेरा खुद का मालिक बनूंगा, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक. ओके, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार, आई आस्क. आई कौन है यहाँ पे, ऑथर. ओके, ऑथर अनीश जंग. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार, आई आस्क. ऑथर ने पूछा कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, मुकेश से, क्योंकि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था. उससे पूछा क्या तुम कार के बारे में कुछ भी जानते हो. आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज. क्या कहता है वो लड़का, कौन, मुकेश. आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीख लूंगा. मुकेश जवाब देता है सीधे ऑथर की आंखों में देखते हुए, सीधे उसकी तरफ, सीधे उसकी आंखों में, ऑथर की आंखों में देखते हुए मुकेश क्या कहता है, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीख लूंगा. हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज amidst the dust of street that fills his town Firozabad, famous for its bangles. His dream looks like a mirage. ऑथर क्या कहती है, उसका जो ये सपना है वो मिराज की तरह अपीयर होता है धूल मिट्टी से भरे उस कस्बे फिरोजाबाद में. किसकी तरह, मिराज की तरह. मिराज क्या होता है, आपने गर्मियों में या फिर आप डेजर्ट एरियाज में चले जाएंगे या आप जिस भी एरिया में देखते होंगे, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो आप सड़कों पे देखते होंगे, बहुत दूर तक देखने के टाइम पे आपको ऐसा दिखाई देता होगा एक समय के बाद कि ऐसा लगता है जैसे वहां पे क्या हो, पानी भर गया हो, मतलब बहुत धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगता. सीधा साधा क्या है मतलब इसका. ऑथर कहती है कि मुझे मुकेश का यह सपना बहुत धुंधला सा दिखाई देता है. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज engaged in making bangles. हर एक दूसरी फैमिली फिरोजाबाद में किससे जुड़ी हुई है, बैंगल बनाने के काम से जुड़ी हुई है. It is the center of India's glass blowing industry where families have spent generations working around furnaces, building glasses, making bangles for all the women in the land, it seems. है ना, क्या कह रही है, It is the center of India's glass blowing industry, यानी कि हिंदुस्तान का कांच का जो उद्योग है वो कहाँ पे, फिरोजाबाद में है. सबसे ज्यादा वहीं पे चूड़ियां बनाई जाती हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो. इट सीम्स दैट इट हैज मेड बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन्स इन द लैंड, इट सीम्स, यानी कि हिंदुस्तान में या पूरे देश में सभी जगह सभी औरतों के लिए चूड़ियां फिरोजाबाद वालों ने ही बनाई हैं, ऐसा प्रतीत होता है. मुकेश फैमिली इज अमॉन्ग देम, मुकेश का परिवार, मुकेश की फैमिली भी उन्हीं में से एक है. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures. उनमें से किसी को भी यह नहीं पता है कि ऐसे भट्टियों में, गर्म भट्टियों में काम करना उन छोटे छोटे बच्चों के लिए गैर कानूनी है. इसके बारे में भी उनमें से किसी भी व्यक्ति को ये नहीं पता है. ठीक है ना. इन डेंगी सेल्स विदाउट एयर लाइट दैट द लॉ, ठीक है, दैट द लॉ इफ एनफोर्स कुड गेट him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. यानी कि जो भी मुकेश और उसके समान 20,000 बच्चे, कितने, 20,000, 20K चिल्ड्रंस वहां पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन ग्लास की भट्टियों में, चूड़ियां बनाने वाले उद्योग जो लगे हुए हैं, जो फैक्ट्री लगी हुई है, जो फर्नेस लगे हुए हैं, उन्हें 20,000 बच्चे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अगर
लॉ एनफोर्स कर दिया जाए, कानूनी हिसाब से देखा जाए, कानून लागू कर दिया जाए, तो उन सभी बच्चों को वहां से क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अंडर एज्ड हैं। ठीक है ना। वहां पे क्या हो रहा है, चाइल्ड लेबर ही तो है। क्या हो रहा है, कौन सा लॉ के थ्रू, चाइल्ड लेबर, है ना। कौन से लॉ के थ्रू, चाइल्ड लेबर। 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes, है ना। जहां वो दिन के उजाले में काम करते हैं, अंधेरी भट्टियों में, वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा अंधेरा होता था, वहां पे बच्चे दिन के उजालों में काम करते हैं। अधिकतर ज्यादातर बच्चे इनमें से क्या करते हैं, अपनी आंखों की रोशनी भी खो देते हैं उन्हीं भट्टियों में काम करते करते, है ना। क्योंकि उनको क्या होता है, वो दिन और रात उसी में काम करते रहते हैं, पूरा दिन दिन भर, कईयों दिनों तक तो उन्हें दिन की रोशनी भी देखने को नसीब नहीं होती है या नहीं मिलती है। इस वजह से उनकी आंखों की रोशनी भी कई बार क्या हो जाती है, चली जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, मुकेश आइस बीम एस ई वॉलेंटियर्स टू टेक मी होम। मुकेश आई बीम्स, बीम्स मतलब मुकेश की जो आंखें चमक उठती हैं जैसे ही वो मुझे अपने घर ले जाने की बात करता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टोरी में मुकेश है जो बच्चा, वो ऑथर को क्या कहता है कि आप मेरे घर चलिए, है ना। मुकेश क्या कहता है, ऑथर को अपने घर ले जाने की बात करता है। which he proudly says is being rebuilt, जिसको वो बहुत प्राउडली, बहुत गर्व के साथ कहता है कि हमारा घर क्या हो रहा है भाई, जिसका पुनर्निर्माण हो रहा है, फिर से बनाया जा रहा है, उसकी मरम्मत कराई जा रही है। We walk down stinking lanes choked with garbage, past homes that remains hovels with crumbling walls, bubbly doors, no windows, crowded with families of human and animals coexisting in a primal state। भाई अब ऑथर बताती है जिस तरीके, जिस रास्ते से वो निकलती है या जिस रास्ते से वो होते हुए मुकेश के घर जाती है, वहां पे क्या सीन था, क्या दृश्य था, उसके बारे में ऑथर बताती है। क्या कहती है, We walk down stinking lanes choked with garbage, हम ऐसी गलियों से, गंदे गलियों से गुजरते हैं जहां पे बदबूदार मतलब जगह थी, बहुत ज्यादा डर्टी स्मेल्स, फॉल स्मेल आ रही थी। स्टिंकिंग, है ना, स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, नालियों से भरी हुई, जहाँ पे क्या होता है, ऐसे एरियाज में, झुग्गी के जो एरिया, स्लम एरियाज होते हैं, वहां पे कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं होता है ना। पानी निकलने की कोई बेहतर व्यवस्था नहीं होती है, पानी भी नालियों में भरा हुआ है, नालियों से बाहर आ जा रहा है ना। क्रम्बलिंग वॉल्स, बुबली डोर्स, है ना, डगमगाते दरवाजे हैं, दीवारें भी टूटी फूटी सी हैं, है ना वहां पे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पुअर लोग वहां पे रहते थे, गरीब लोग वहां पे रहते थे, है ना। बुबली डोर्स, नो विंडोज, ऐसे घर हैं जिनमें दरवाजे नहीं है, खिड़कियां ही नहीं है। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स कोएक्सिस्टिंग, एग्जिस्टिंग इन अ प्राइमल स्टेट, है ना। ऐसे मानो लोग और जानवर एक साथ रह रहे थे जैसे कि बाबा आदम के जमाने के लोग हों, है ना। बहुत ही ज्यादा मतलब गंदे तरीके से रह रहे थे, जहाँ पे इंसान और जानवर एक ही साथ रह रहे थे। पता चला वहीं पे कोई इंसान भी रह रहा है, उसी के बगल में कोई गाय बंधी हुई है या फिर कोई भैंस बंधी हुई है। ये ऑथर राइटर डिस्क्राइब करती है वो कंडीशन जो उसने अपनी आंखों से उसके घर जाने के दौरान अपनी आंखों से देखी थी। ठीक है ना। He stopped at the door of one such house, bangs a bubbly iron door with his foot and pushes it open। ना मुकेश क्या करता है, वैसे ही एक घर के सामने रुक जाता है और एक टूटे फूटे डगमगाते हुए लोहे के दरवाजे में जोर से लात मारता है और वो लात मार के उस डोर को खोल देता है। कौन, मुकेश, ठीक है। एंड पुशेस इट ओपन, और उसको लात मार के, धक्का मार के क्या कर देता है, खोल देता है। We enter a half built shack
हम एक अध्वनि झोपड़ी में घुस जाते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट that dead grass is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves, है ना। एक अध्वनि झोपड़ी में वो दोनों लोग क्या करते हैं, घुस जाती हैं। उसमें वो क्या देखती है कि एक चूल्हे पे एक बर्तन रखा हुआ है, उस बर्तन में स्पिनच लीव्स उबल रही हैं। स्पिनच लीव्स मतलब पालक की कुछ पत्तियां उबल रही हैं। ऑन द ग्राउंड लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, है ना। जमीन पे कुछ, धरती पे कुछ एल्यूमिनियम की प्लेट्स रखी हुई हैं जिन पे और ज्यादा कुछ अलग सब्जियां कटी हुई रखी हुई हैं। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। फ्रेल यंग वुमेन यानी कि एक कमजोर सी युवा स्त्री, एक कमजोर सी जवान औरत वहां पे बैठी हुई है जो घर के बाकी के लोगों के लिए शाम का खाना बना रही है। थ्रू आईज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स, है ना। धुएं से भरी हुई आंखों के साथ वो स्माइल करती है। थ्रू आईज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स, कैसे स्माइल करती है भाई, क्या हुआ था वहां पे, धुआं भर गया होगा, उसकी आंखों में जा रहा होगा। ऑथर वही बताती है ना। आईज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स, शी इज द वाइफ ऑफ, क्या बताती है, धुएं से भरी हुई आंखों के साथ वो स्त्री, वो लेडी स्माइल करती है, हंसती है, ठीक है ना। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, यानी कि ये औरत, ये लड़की, ये महिला कौन थी, मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी, है ना। मुकेश, शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, कौन थी, मुकेश के एल्डर ब्रदर की कौन थी, वाइफ थी। Not much older in years, she has begun to command respect as the बहू, जिसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी लेकिन उसको उस परिवार में रेस्पेक्ट यानी कि खूब मान सम्मान मिलने लगा था ओहदे की वजह से। क्यों? क्योंकि वो उस घर की बड़ी बहू थी। कौन थी भाई? उस घर की बहू थी। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, है ना। हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, जो ऑलरेडी जिम्मेदारी, पहले से ही जिम्मेदारी उठाए हुए थे 3 लोगों को, 3 लोगों की, उस घर के 3 सदस्यों की। कौन कौन? मुकेश की, मुकेश के बड़े भाई की और उनके पिताजी की। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face, है ना। When the older man enters, जब एक बुजुर्ग व्यक्ति घर के अंदर आता है, घुसता है, तो वो धीरे से, आराम से एक टूटी हुई दीवार के पीछे खिसक जाती है, सरक जाती है और धीरे से अपना घूंघट चेहरे के नीचे खिसका लेती है, ठीक है ना। हाँ। As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male enters, जैसा कि उनकी परंपरा थी, जैसा कि परंपरा डिमांड करती है कि जब भी कोई बड़ा या बुजुर्ग व्यक्ति घर के अंदर घुसेगा तो उस घर में जितनी भी बहुएं होंगी वो घूंघट से अपना चेहरा ढक लेंगी। ऐसी उनकी परंपरा थी। उसी परंपरा का पालन करते हुए उस लड़की ने, उस बहू ने क्या किया? अपना घूंघट से चेहरा ढक लिया। In this case, the elder is an improvised बैंगल मेकर। भाई इस केस में ये जो बुजुर्ग व्यक्ति था ये कौन था? एक गरीब निर्धन बैंगल मेकर था, है ना, चूड़ी बनाने वाला व्यक्ति था। Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, है ना। Despite long years of hard labor, यानी कि बहुत सालों के कठिन
परिश्रम के बावजूद भी पहले एज अ टेलर उसने वर्क किया, पहले क्या दर्जी के रूप में उसने काम किया। देन आफ्टर अ बैंगल मेकर, उसके बाद क्या किया भाई, बैंगल मेकर के रूप में काम किया। उसके बाद भी वो अपना घर को रिनोवेट यानी कि पुनर्निर्माण कराने में असमर्थ रहा, पूरी तरह से उसको बनवाने में असमर्थ रहा। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, दो बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाया वो अपने, किसको, मुकेश को और उसके बड़े भाई को। All he has managed to do is to teach them what he knows, the art of making bangles। जो वो अपनी पूरी जिंदगी में कर पाया था वो क्या था, जो उसको आता था वही वो अपने बच्चों को सिखा पाया था। और वो क्या चीज थी, वो थी भाई चूड़ियां बनाने की कला, है ना, बैंगल बनाने की कला, ठीक है ना। हाँ, all he has managed to do is to teach them what he knows, that is the art of making bangles, ठीक है। it is his कर्म, his destiny says मुकेश grandmother, है ना। it is his कर्म, यह उसका भाग्य है, उसका कर्मा है, उसकी किस्मत है। कौन कहता है ऐसा, मुकेश की ग्रैंडमदर। वहां पे जो ये बूढ़ी स्त्री बैठी हुई थी, कौन भाई, मुकेश की ग्रैंडमदर बैठी हुई थी, वो क्या कहती है, ये उसका भाग्य है, उसकी किस्मत है। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangle makers, है ना, polishing the glass of bangles। मुकेश की ग्रैंडमदर जो दादी वहां पे बैठी हुई थी, वो क्या कहती है, इट इज हिज कर्म, उसका कर्मा है, उसकी किस्मत है, जिसने अपने स्वयं के पति को अंधा होते हुए देखा था। कैसे अंधा हो गया था, क्योंकि ये जो बैंगल पॉलिश करती है ना, इनसे जो पॉलिश से जो डस्ट उड़ती है वो आंखों को बहुत नुकसान करती है। उसकी वजह से क्या होता था, बहुत सारे लोग पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते थे, यानी कि अपनी युवा अवस्था में ही अंधे हो जाते थे, ठीक है ना। कैन अ गॉड गिवन lineage ever be broken, she implies, वो क्या कहती है, कैन अ गॉड गिवन lineage ever be broken, वो क्या मानती है इसको, उसकी जो ग्रैंडमदर है मुकेश की, क्या मानती है कि ये तो भाई भगवान का आदेश है, भगवान की दी हुई लाइन है कि भाई हम इसमें चूड़ी बनाने वाले लोगों के वंश में, चूड़ी बनाने वाले लोगों के परिवार में पैदा हुए हैं, तो हमें यही काम करना होगा, है ना। क्या कहती है, कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, यानी कि जो ईश्वर की मर्जी है उसको खिलाफ नहीं जाया जा सकता है, उसको नहीं तोड़ा जा सकता, उस परंपरा को। सी एम्प्लाइज बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस, वो कहती है कि भाई बैंगल यानी कि चूड़ियां बनाने वाले के घर में पैदा होने के बाद उन्होंने जिंदगी में अपनी कुछ नहीं देखा, सिर्फ क्या देखा है, चूड़ियां ही चूड़ियां देखी हैं। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, क्या कहती है, अपने घर में, दूसरों के घर में, अपने आंगन में, बरामदे में, दूसरों के आंगन में, दूसरों के बरामदे में, सीधा सा मतलब उसके कहने का मतलब एक्स वाई जेड जो भी उसने जगह देखी है, हर एक जगह उसने क्या देखी है, चूड़ियां 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 और चूड़ियां ही देखी हैं, ठीक है। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ रेनबो। अब वो यहाँ पे कलर की बात करती है कि हरी चूड़ी, नीली चूड़ी, पीली चूड़ी, पर्पल चूड़ी, है ना, जो भी कलर आप रेनबो से निकाल पाए। कौन सा, कैसे, रेनबो से, है ना। रेनबो में कितने कलर होते हैं भाई, 7 कलर होते हैं ना। तो वो कह रही है जो भी कलर ऑफ रेनबो से, इंद्रधनुष से निकाल पाए, उन्हें हर एक कलर की चूड़ियां उसने वहां पे देखी हैं। लाई इन द माउंट्स इन unkempt yards are piled of 4-wheel and car pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town, है ना। क्या कहती है, वहां पे बच्चे जो भी लोग काम करते थे, इस तरह की तमाम प्रकार की अलग अलग की रंग बिरंगी चूड़ियां
हैंड कार्ट्स में रखे हुए उनके दर्जन के दर्जन, गुच्छे के गुच्छे आपने देखे होंगे चूड़ियों के, ऐसे 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 स्पाइरल्स बने रहते हैं, ऐसे ऐसे चूड़ियों के गुच्छे होते हैं ना, जो है ना, तो ऐसे बहुत सारे स्पाइरल्स बने हुए होते हैं जो हैंड कार्ट्स में, हाथ गाड़ी में रख के नए नए लोग, जवान जवान लोग उनको उसी टाउन में यहाँ से वहां लेके घुमाते फिरते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए। And in dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their father and mother, building pieces of colored glass into circles of bangles। भाई क्या बता रहा है कि वहीं आसपास की झोपड़ियों में भी छोटे छोटे बच्चे यानी कि लड़के लड़कियां जहाँ पे दिए टिमटिमा रहे हैं, अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ एक वृत्ताकार में बैठे हुए हैं और वो वहां पे क्या कर रहे हैं भाई, रंग बिरंगी चूड़ियां बनाने का काम कर रहे हैं, है ना। बिल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लासेस इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। भाई उनकी आंखों की बात करते हैं, उनकी आंखें अंधेरे में रहने के कारण बहुत ज्यादा अंधेरे के प्रति एडजस्ट हो गई हैं एज कंपेयर टू लाइट, यानी कि उनको ज्यादा लाइट देखने को नहीं मिली है। ज्यादातर वो लोग भट्टियों में ही रहते हैं जिनमें बहुत ज्यादा अंधेरा और बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो वो लेडी बता रही है कि उनकी आंखें ज्यादा एडजस्ट हैं अंधेरे में देखने के लिए एज कंपेयर टू लाइट में, मतलब उनको उजेला देखने की आदत नहीं है, उजेले में देखने के लिए उनकी आंखें एडजस्ट नहीं है ना। किससे एडजस्टेड है भाई, डार्क में, अंधेरे में रहने के लिए। दिस इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। इसीलिए ही क्या होता है, वो बच्चे ऑफन यानी कि ज्यादातर युवा होने के पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं, यानी कि अपनी बाल अवस्था में ही वह बच्चे अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। क्यों? क्योंकि वो छोटे से ही काम कर रहे होते हैं उन गिलास की भट्टियों में, चूड़ियां बनाने वाले उद्योग में, फैक्ट्रियों में, जहाँ पे उनको उजेला देखने को नहीं मिलता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा हमेशा ही रहता है। तो इस वजह से उनकी जो आंखें हैं अंधेरे के लिए ही एडजस्ट हो जाती हैं और इसका नतीजा क्या होता है कि वो जवान होने के पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। सविता, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman shouldering pieces of glass। सविता, यंग गर्ल, एक युवा बच्ची, एक लड़की जो छोटी सी कम उम्र की बच्ची है ना, इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस, जिसने पिंक ड्रेस पहनी हुई है, भद्दी पिंक ड्रेस पहनी हुई है, सिट्स alongside an elderly woman shouldering pieces of glass, है ना, एक बुजुर्ग लेडी के पास बगल में बैठी हुई है और उन्हीं ग्लास पीसेस को, उन्हीं बैंगल्स को बनाने का काम कर रही है। As her hands move mechanically like the tongues of a machine, I wonder, हाँ, as her hands move mechanically, जो ऑथर क्या कहती है कि मैं देखती हूँ उसके हाथ मशीन की तरह मूव करते हैं, है ना, इतनी क्योंकि प्रैक्टिस हो गई होगी उस बच्ची को काम करते करते कि अब कैसे काम करते हैं, मशीन की तरह काम करते हैं। आई वंडर इफ शी नोज द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स टू मेक, है ना, लेखिका कहती है कि मैं हैरान हो जाती हूँ कि जो चूड़ियां वो बना रही है, क्या उसको उसकी पवित्रता, उन चूड़ियों की पवित्रता का एहसास भी है क्या? कौन सोचता है ऐसा? ऑथर सोचती है। It symbolizes an Indian woman's सुहाग, auspiciousness in marriage। भाई ये चूड़ियां किसको दर्शाती है? इंडियन वुमेन, जो हिंदुस्तान की महिलाएं हैं, उनके सुहाग की निशानी को दर्शाती है। क्या वो चूड़ियां? It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil। लेखिका बताती है, it will dawn on her suddenly, अचानक से ही एक दिन उसके हाथों में वह चूड़ियां चढ़ा दी जाएंगी।
वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विथ रेड वेल, जब उसका सर लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हेना, जब उसकी हाथों में लाल मेहंदी लगाई जाएगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रेस्ट, और उसके हाथों में, उसकी कलाइयों में लाल कलर की चूड़ियां पहनाई जाएंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और तब वो एक दुल्हन बन जाएगी। क्या बन जाएगी भाई? दुल्हन बन जाएगी, है ना। मतलब जो ऑथर है, राइटर है ना, वो क्या कहती है कि जो बच्ची एक बुजुर्ग महिला के साथ बैठ के चूड़ियां बनवा रही है, क्या उसको उन चूड़ियों की अहमियत भी पता है कि वो चूड़ियां क्या होती हैं? लेकिन उसको अचानक ही उस दिन पता चल जाएगा जब उसके हाथ लाल मेहंदी से रंग दिए जाएंगे, जब उसके हाथों में लाल लाल चूड़ियां पहना दी जाएंगी, जब उसका सर लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा, तब उसको उन चूड़ियों की अहमियत, उसकी कीमत, उसकी पवित्रता का भान हो जाएगा, उसकी पवित्रता का एहसास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तब वह क्या बन जाएगी भाई? दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, ठीक उसी तरह जैसा कि वो बुजुर्ग महिला बनी थी काफी वर्षों पहले। She still has bangles on her hand, जिसके हाथों में अभी तक क्या है भाई? वो बैंगल्स या वो चूड़ियां उपस्थित हैं, वो चूड़ियां मौजूद हैं। किसके हाथों में? वो बुजुर्ग महिला जो बगल पे बैठी हुई है ना। राइटर उसके बारे में बात कर रही है, ठीक है ना। हर रेस्ट बट नो लाइट इन हर आइस, आइस है ना। उस बुजुर्ग महिला के हाथों में क्या है भाई? आज तक चूड़ियां उपस्थित है, मौजूद हैं, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं बची है। उसकी आंखों में क्या नहीं बचा है? रोशनी नहीं बची है। क्यों? क्योंकि भाई वो बुजुर्ग हो गई है। और क्या पता उसकी आंखों की रोशनी बुजुर्ग होने से बहुत पहले ही चली गई हो, है ना। उम्र के साथ साथ आंखों की रोशनी जरूर कम हो जाती है, लेकिन बहुत कुछ स्पष्ट रूप से नजर आने लगता है ना। जैसे ही आपके या किसी भी व्यक्ति की, एजड पीपल्स की, है ना, बूढ़े बुजुर्गों की आंखों की रोशनी उम्र के साथ जरूर कम होती है, लेकिन उन्हें बहुत कुछ स्पष्ट रूप से नजर आने लगता है, क्योंकि उनको जिंदगी का तजुर्बा इतना हो चुका होता है। ठीक है, इसीलिए हमेशा ही उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनके एक्सपीरियंस के लिए, उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में काम किया है उसके लिए। ठीक है ना। एक वक्त सिर भर का खाना भी नहीं खाया, सी सेस इन अ वॉइस ड्रिंड आउट ऑफ जॉय, है ना। उदासीन आवाज में, दुखी आवाज में वह बुजुर्ग महिला क्या कहती है? एक वक्त शेर भर का खाना भी नहीं खाया है, यानी कि उसने खाना भी नहीं खाया है, एक वक्त का खाना भी नहीं खाया है पूरे लाइफ टाइम में, जो उसकी पूरी जिंदगी निकल गई है, गुजर गई है। उसने इतनी मेहनत की है, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा उन लोगों को नहीं मिलता है, इसीलिए उन्होंने क्या नहीं किया? एक वक्त का खाना भी नहीं खाया है। ठीक है ना। हाँ, एक मिनट गाइस। यस, सॉरी गाइस। ओके, क्या कहती है? एक वक्त का शेर भर का खाना भी नहीं खाया है ना। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, दैट्स व्हाट शी हैज रिप्ड, यही उसने कमाया है। क्या कमाया भाई?
पूरी जिंदगी भर उसकी जिंदगी निकल गई, एक वक्त का उसने पूरा खाना भी नहीं खाया है। Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. उसी औरत के बगल में उसका हस्बैंड, उसका पति बैठा हुआ है ना, जो क्या कहती है, जो क्या कहता है कि he knows nothing except making bangles. उसको सिर्फ चूड़ियां बनाना ही आता है और दूसरा कोई काम उसको नहीं आता है। I have done is make a house for the family to live in. All I have done, उसने क्या किया है भाई, वो क्या कहता है, what all I have done is I have made a house for my family to live in. पूरे जीवन काल में, पूरी जिंदगी में मैंने अपने परिवार के रहने के लिए सिर्फ एक घर ही बना पाया है। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. इतना सुनते ही वहां बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए, आश्चर्यजनक भाव से देखने लगे और क्या कहते हैं कि भाई उसने कम से कम एक घर तो बना लिया है। क्यों? क्योंकि वहां पे उपस्थित बहुत सारे लोगों ने ये भी नहीं कर पाया है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, कि एक सिर के ऊपर छत भी नहीं बना पाए हैं, है ना, एक घर भी नहीं बना पाया है। He has a roof over his head, है ना, उसके सिर के ऊपर कम से कम छत तो है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles. The cry of not having money to do anything, right, except carry on the business of making bangles, not even enough to eat rings in every home. भाई क्या कहते हैं, पैसा ना होने की जो चीख है, जो दुख है, जो तकलीफ है, वो फिरोजाबाद में हर एक परिवार में है। हर एक परिवार की वही कंडीशन है, क्या कि भाई पैसा तो किसी के पास नहीं है ना, क्या है, इसीलिए उनको बैंगल मेकिंग का काम ही है, उनके पास जो चूड़ियां बनाने का ही काम है, जिसको उनको आगे बढ़ाना पड़ता है। The young men echo the lament of their elders. जो वहां पे नए नए लोग थे वो भी अपने बूढ़ों की, अपने बुजुर्गों की आवाज ही दोहराते हैं, जो वो कहते हैं वैसे ही प्रतीत होता है या वैसे ही करते हैं। क्या कि भाई उनको दूसरा कोई काम नहीं है, एक्सेप्ट द बैंगल मेकिंग, चूड़ी बनाने के अलावा वो कोई भी दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, है ना, उसको ऐसा प्रतीत होता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ नहीं बदला। ईयर्स ऑफ माइंड numbing toil have killed all initiative and ability to dream. भाई समय के साथ साथ कुछ नहीं बदला, जैसा था वैसा ही है फिरोजाबाद, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, खाने को एक वक्त का खाना भी नहीं है। इस कारण से क्या हुआ है, जो वहां के युवा लोग थे, नए लोग थे, उनकी सोचने समझने की, सपने देखने की क्षमता भी खत्म हो गई है, नष्ट हो गई है। उन्होंने क्या मान लिया कि हमारे दादा परदादा चूड़ियां बनाते आए हैं, हमें भी जिंदगी भर यही चूड़ियां बनानी है और हमारे बच्चों का भी यही फ्यूचर है। यानी कि हमारे बाप चूड़ी बनाते थे, हम भी चूड़ी बनाएंगे, हमारे बच्चे भी चूड़ी बनाएंगे, है ना, ये उनका नारा हो गया था, समझ लो ऐसा, ठीक है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव, आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. अब यहाँ पे ऑथर जो है वो अपना ज्ञान देती है या फिर पेश करती है, क्या कहती है, Why don't you organize yourself into a cooperative? आप अपनी एक युवा लोगों की एक समिति क्यों नहीं बनाते हो? आप उन लोगों के चक्कर में क्यों पड़े हो जिन्होंने तुम्हारे दादाओं का इस्तेमाल किया, एक्सप्लॉइट किया, शोषण किया, जिन्होंने तुम्हारे पिताजी का शोषण किया, जो लोग
अब तुम्हारा शोषण कर रहे हैं तो उनके क्यों सुनते हो? तुम लोग अपनी एक समिति क्यों नहीं बनाते हो? Even if we get organized, we are the one who will be hauled up by the police. भाई युवा लोगों में क्या है? डर है, खौफ का माहौल है। क्या कहती हैं? Even if we get organized, अगर हम लोग एक संगठन भी अपना बना लें तो हम ही वो लोग हैं जो पुलिस के द्वारा परेशान किए जाएंगे। Beaten and dragged to jail for doing something illegal. कुछ गैर कानूनी करने के जुर्म में, अपराध में जेल में धकेल दिए जाएंगे, जेल में डाल दिए जाएंगे, पीटे जाएंगे, मारे जाएंगे। देसे वो कहते हैं ऐसा, है ना। देयर इज नो लीडर अमॉन्ग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। उनमें से कोई भी एक नेता नहीं है, कोई भी लीडर नहीं है, किसी के एक के अंदर भी लीडरशिप क्वालिटी नहीं है जो उन लोगों को, उन गरीब लोगों को लीड कर पाए, उनको एक अलग दृष्टिकोण दे पाए, उनको एक अलग रास्ता दिखा पाए कि भाई आप लोग या फिर हम सब लोग अब ये काम ना करके कोई एक दूसरा काम करते हैं। उनमें से कोई भी एक नेता नहीं है। Their fathers are as tired as they are, है ना। उनके बाप दादा भी उनकी तरह ही थके हुए महसूस कर रहे हैं। Their fathers are as tired as they are, ठीक है ना। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice, ठीक है ना। They talk endlessly, वो बिना रुके हुए भी एक चक्कर में बात करते जा रहे हैं, मतलब अपनी बातों को ऐसे गोल 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 घुमाए जा रहे हैं, एक्सक्यूज दे रहे हैं, बहाने बना रहे हैं। उनकी बातें गरीबी से लेकर निर्धनता से होते हुए, उदासीनता से होते हुए, लालच से होते हुए अन्याय तक जाती हैं उनकी बातें। यानी कि वो एक्सक्यूज दे रहे हैं, अपने खुद से दूर भाग रहे हैं कि हम बहुत गरीब हैं, हम बहुत उदास हैं, हमारे साथ बहुत अन्याय होता है, हमारे साथ फलाना ढमकाना करके जो भी बातें करते हैं। Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in web of poverty. Listening to them, ऑथर क्या कहती है? उनकी बात को सुनते हुए मुझे कैसा प्रतीत होता है या कैसा लगता है कि भाई उसको दो अलग अलग दुनिया दिखाई देती हैं। किसको? ऑथर को। कौन सी? एक तो उनका जो परिवार है गरीबी में जकड़ा हुआ है। किस में जकड़ा हुआ है भाई? गरीबी में जकड़ा हुआ है, है ना। नेक्स्ट, बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट in which they are born, by the stigma of caste in which they are born। और दूसरा कौन सा भाई? जो जाति का जहर है, जो जातियों का जहर होता है जिनमें वो पैदा हुए हैं, है ना। एक तो कौन सा भाई? गरीबी के जाल में बंधे हुए हैं वो लोग, और दूसरा by the stigma of caste in which they are born, ऐसी जाति में जो वो पैदा हुए हैं। जाति कौन सी? चूड़ी बनाने वालों की जाति में, बैंगल मेकर्स में। द अदारा विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, द मिडिलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, है ना। हाँ, द अदारा विशियस सर्कल ऑफ, जो जितने भी तमाम प्रकार के लोग हैं वो इन लोगों का क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। जिनमें भाई कौन से हैं? साहूकार हैं, है ना, जो सेठ, धन्ना सेठ होते हैं वो हैं, बिचौलिए हैं, पुलिस वाले हैं, है ना, कानून के रखवाले हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाह हैं, एंड द पॉलिटिशियंस। और कैसे हैं भाई? राजनेता भी हैं जो क्या कर रहे हैं? इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है ना।
टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड ही कैनॉट पुट डाउन। इन सभी लोगों ने मिलकर उन बच्चों के ऊपर एक ऐसा बोझ रख दिया है जिनको वो अपने जीवन काल में, जीवन पर्यंत कभी उतार नहीं सकते, कभी उतार नहीं पाएंगे। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, है ना। उनके समझदार होने से पहले ही, उनके एडल्ट, उनके बड़े होने के पहले ही वह उन सब चीजों को ऐसे स्वीकार कर लेते हैं प्राकृतिक रूप से, जैसे कि उनके पिताजी ने की हुई थी। मान लो वो खुद से ही ऐसा मान लेते हैं कि भाई हम इन्हीं लोगों के, पुलिसमैन के, साहूकार के क्या हैं भाई, नौकर हैं। हम इनकी लाइफ में, हम ऐसी फैमिली में पैदा हुए हैं कि हमारे बाप दादा इनकी गुलामी करते आए थे और हमें भी इन्हीं की गुलामी करनी है और हमारे होने वाले बच्चों को भी इन्हीं की गुलामी करनी पड़ेगी, है ना। क्या होता है मेन इंपॉर्टेंट, क्या होता है माइंड सेट होता है। जब अगर लोगों का, किसी का भी माइंड सेट नहीं बदलेगा तो वो वैसे ही काम करते रहेंगे, ठीक है ना। कहते हैं ना कि किसी को अगर गुलाम बनाना है तो उसका माइंड सेट वैसा कर दो। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ और करने का मतलब होगा चुनौती। यानी कि अगर आप कोई दूसरा काम भी करना चाहें तो उसका सिंपल सा मतलब क्या होगा भाई, चुनौती। कि आप क्या कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, यानी कि आप चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड डेयरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। क्या कहता है, एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और चुनौती देना उसकी परवरिश में नहीं सिखाया गया है उन बच्चों को, कि भाई उनको बताया ही नहीं गया है किसी को चुनौती देना। उनको यही सिखाया गया है कि हम लोग इसी फैमिली में, इन्हीं परिवार में पैदा हुए हैं और हमारा यही काम है इन लोगों की देखभाल करना, उनका नौकर बने रहना, उनकी गुलामी करना। When I sense a flash of it in मुकेश I am cheered। भाई राइटर क्या कहती है, जब मैं इसकी एक झलक, उम्मीद की एक किरण देखती हूँ मुकेश के अंदर, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि इन बच्चों में एक लीडर पैदा हुआ है, एक विद्रोही, क्रांतिकारी कह लें, पैदा हुआ है, जिसने अपना दादा परदादाओं के समय से चला आ रहा जो काम है वो ना करने के अलावा कोई दूसरा काम करने की ठानी है। यानी कि उसने क्या किया है भाई, कि वो कहता है कि मैं बैंगल नहीं बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा भाई, मोटर मैकेनिक बनूंगा। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक ही रिपीट्स, वह दोहराता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही विल गो टू द गैरेज एंड लर्न, वो गैरेज जाएगा और सीखेगा। बट द गैरेज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज उसके घर से बहुत ज्यादा क्या है भाई, दूर है। आई विल वॉक, क्या कहता है, आई विल वॉक, मैं चल के जाऊंगा। ही इंसिस्ट, है ना, वो अपनी जिद पे अड़ा रहता है। क्या कहता है कि कितने भी दूर क्यों ना हो मैं चल के जाऊंगा। डू यू ऑल्सो हैव अ ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, ऑथर कहती है उस बच्चे से, क्या तुम्हें प्लेन, हवाई जहाज उड़ाने का भी सपना है तुम्हारा। He suddenly silent, he suddenly silent, तुरंत ही मुकेश क्या हो जाता है, चुप हो जाता है। No, he says staring at the ground, जमीन की तरफ घूरते हुए, देखते हुए मुकेश क्या कहता, नहीं, मेरा हवाई जहाज उड़ाने का कोई सपना नहीं है। In his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret, उसके हल्की बुदबुदाने की आवाज में एक अफसोस है, सॉरी अफसोस नहीं, उसके बुदबुदाने की आवाज में क्या है भाई, एक एम्बेरसमेंट है, हिचकिचाहट है, शर्मिंदगी है, जो अब तक अफसोस में नहीं बदली है। That has not yet turned into a regret, जो अभी तक अफसोस में, पछतावे में नहीं बदली है। इसमें रिग्रेट का मतलब क्या होता है, पछतावा, है ना। उसके आवाज में क्या है भाई, शर्मिंदगी तो है, हिचक तो है, लेकिन अभी तक उसको
किसी भी चीज का अफसोस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा यंग है, अभी बच्चा है, जो वो अपनी लाइफ में चाहे, जिंदगी में चाहे, हर एक वो चीज कर सकता है। ही इज content to dream of cars that he sees hurtling down the street of his town, है ना। वो उन्हीं गाड़ियों का दीवाना है, उन्हीं कार के बारे में देखता रहता है जो अपने टाउन में आसपास घूमती रहती हैं, जो बड़े बड़े लोग उसके टाउन में देखता है कि भाई यहाँ से वहां कैसे कार से घूमता रहता है। तो उसने कारें देखी हुई हैं क्योंकि पहले, इसीलिए वो कार के बारे में सोचता है कि मैं मोटर मैकेनिक बन जाऊंगा। क्यों? एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। वहीं अगर एयरप्लेन की बात है, हवाई जहाज की बात है, हेलीकॉप्टर्स की बात है, तो वो तो कभी कभार ही, दो चार ही उसको देखने को मिल जाते होंगे, उसके गलियों से ऊपर से आसमान में निकलते होंगे, उसके टाउन से, जो फिरोजाबाद उसका टाउन था, है ना। वहां पे अपने शहर में उसने मोटर कार्स तो देखी हैं, लेकिन उसने कभी कभार ही हवाई जहाज देखे हैं। इस तरीके से ये चैप्टर, है ना, द बेंगल मेकर्स लॉस्ट स्प्रिंग का सेकंड पार्ट यहाँ पे खत्म होता है ना। तो यहाँ पे इस चैप्टर में सॉरी, इस चैप्टर में अपन ने दो स्टोरीज डिस्कस की हैं। कौन कौन सी? पहला पार्ट में अपन ने बात किया था रैग पिकर्स के बारे में। एक बच्चा था जिसका नाम था साहिब आलम, कूड़ा बीनता था, कचरा उठाता था। दूसरे पार्ट में अपन ने बेंगल मेकर्स के बारे में बात किया है ना। दोनों ही चैप्टर्स की अगर समरी देखी जाए तो ऑथर क्या चाहती है कि यहाँ के जो लोग हैं, बच्चे हैं, अपना खुद का ही कोई ऐसा काम करें, है ना। शी वांटेड देम टू बी देयर ओन मास्टर, वो अपने स्वयं के मालिक हो जाएं, है ना। इस पे वो चाहती थी। तो क्योंकि बेंगल मेकर सालों से, पीढ़ियों से एक ही काम करते आ रहे थे, चूड़ियां बनाने का, तो वहां पे जैसे ही ऑथर जाती है, सभी लोगों से बात करती है कि आप लोग ऐसा काम क्यों करते हैं जिसमें आप लोगों का शोषण होता है पुलिस वालों के द्वारा, कानून के रखवालों के द्वारा, सेठ धन्ना सेठों के द्वारा, नौकरशाहों के द्वारा, है ना। आप लोग खुद का काम क्यों नहीं करते? एक ऑर्गेनाइज संगठन बनाइए अपना। तो वहाँ के लोग भयभीत भी है, डरे हुए भी हैं कि भाई अगर हम ऐसा कोई काम करेंगे तो इसका मतलब होगा चुनौती, उन लोगों को चुनौती देना, और फिर वो हमें किसी भी झूठे मूठे केस में फंसा के कहीं मार कूट देंगे, पिटाई कर देंगे, या फिर जेल में डाल दिए जाएंगे हम लोग। तो इससे उनको डर भी लगता है। उनमें से कोई एक लीडर नहीं होता है जो उनको हेल्प करे, उनको मदद कर पाए, चीज़ों को अलग तरीके से देखने के लिए, जो उनको फ्रंट लाइन पे, फ्रंट रो पे खड़े होकर लीड कर पाए। वैसा कोई लीडर उनमें से नहीं देखता है। ऑथर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है जब वो मुकेश को देखती है कि भाई इसको तो कम से कम लीक से हट के कोई दूसरा काम करना है, इसको चूड़ियाँ नहीं बनानी है, बैंगल्स नहीं बनाने हैं जैसा कि इनके बाप दादा करते आए हैं। इसको अपना खुद का एक दूसरा मैकेनिक बनना है, गैराज शुरू करना है। तो ऐसा देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इस तरीके से ये कहानी है, फिरोजाबाद टाउन की कहानी है। इस तरीके से अपन ने ये सेकंड चैप्टर भी यहाँ पे फ्लेमिंगो का ख़त्म कर लिया है। दोनों पार्ट्स अपन ने इसके देख चुके हैं। होपफुली आप सभी लोगों ने इस चैप्टर के पहले वाले चैप्टर्स भी पढ़े होंगे, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं, या आप जो भी बच्चों ने ऑफलाइन क्लासेस मिस कर दी हैं, तो इसी ऑनलाइन बेस पे, इसी चैनल पे, किसान कैरियर इंस्टीट्यूट पे अपने पिछले लेक्चर्स के वीडियोस भी एज इट इज डले हुए हैं। आप लोग जाके उनको चेक कर लें, ठीक है ना, और उनसे पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। जय भवानी।